quickly a check to see how the first time I'm trying StreamYard and just checking on to see how it works. I have a great therapist who's joining me in this check, and so we thought that while we are checking, we would talk about therapy, answer all questions about therapy, and just you can give us feedback. So send in a comment so I can see that you can see this live. That's how I learn. Uh, all right, Selena is with me in the studio. Selena, are you ready? Let's check your mic. And I'm going to take Selena in. But before I take Selena in, I see a lot of likes. So I guess just 5 likes. Does that mean that you can see it? People who are watching the live, please let me know in the comments that you can see me. And that's the idea. I'm learning as to how the commenting work. Um, when streaming. Okay, I think this is. So I'm gonna take Selena in. Hello, Selena. Okay. Assalamu alaikum. Hello. Can you hear me? How are you? How come I can't hear you? Yes. Yes, I can. I can hear you. Now the question is, Selena, The that last Jason time Fitter. also, can you hear me? Am I? I can hear you just fine, and I think you can hear me too, right? So now I Yeah, want I to can see hear if you. people can hear us. So I want to see if I can get comments on this. So अगर आप comment कर रहे हैं, all right, people are commenting with like these emojis, but I need to see people's comments. So आप comment करके बताएं कि आप हमारे साथ हैं इस वक्त. Yes, Amna is saying hi there. Hello, Amna. Excellent. So, guys, this is amazing. I feel like मेरे neurons जो है ना वो fire हो रहे हैं क्योंकि कुछ नया सीखने के लिए. Selena, welcome to this testing ground. Thank you for being. You popped up on my Facebook. All right, that's good. So, thank you for being here with me as always, ready to take on the work that we do together. And Selena and I have been talking a lot about how can we talk more about mental health? How can we talk more about counseling, therapy? हम क्या बात कर सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इतना एलियन और अजूबा ना रहे और जो सवालात हैं वो उनके लिए आसान हो जाएं. So today Selena is a therapist and I am going to I want to talk about with Selena कि therapy जो है मुअम्मा क्या है. So Selena whenever हाँ मुअम्मा आई थिंक राइट ये मम्मा क्या है या चोचला क्या है ये भी मैंने बहुत सुना है ये क्या चोचले पाल लिए हैं. So lots of like myths regarding therapy as to what it is. So how would you like to explain to somebody watching, and then please guys जो हमें देख रहे हैं, put in your questions in your comments about therapy. What is the myth about therapy that you know? What are some queries that you always felt like ये कैसे काम करता है? जी चलिए. Oh, you're asking me. Yes. Thought you said. No, I thought like we'll ask you and then see how you want to take it on. Okay. Okay. So, therapy के Therapy के different different goals goals होते हैं. Hmm. अच्छा, sorry. Sorry. Let's check Let's check the the sound. I'm hearing my sound. You are right. I'm trying to fix Yeah. it, so that's okay. Let's give it a minute. हम इसको fix करते हैं. I know Amna Hello. I can't hear you. I'm trying because Selena's also trying to work. This is what happens when you try and learn technology. I have a very special guest coming on tomorrow, and because of that, I want to learn this. And then some awesome people that I want to take on, talk about. So Selena is back. Selena आ गई है वापस.
सलीना, ये हमारा सीखने का टाइम है, हम सीख रहे हैं ना. Okay. I like that. I know you like that, right? But my voice is still echoing. Now, is it echoing now? No. It's okay. Yes. So this meant that we needed the headphones in. Because it was coming back from there. Yes. No, actually, Amna, I think the headphone means that she is actually helping us. Mudassir is here, and thank you, Mudassir. So guys, questions for us. We are therapists. हम बात करना चाहते हैं कि थेरेपी क्या है, लेकिन हम बहुत कैजुअल बात कर रहे हैं, इसलिए कि हम रियली इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट भी कर रहे हैं एक तरह से, मगर हम आपके सवालात ज़्यादा लेना चाहते हैं. That do you have any, how many people watching right now are in therapy? That would be, well, I don't know if they're admitted, but हाँ, कि आपने थेरेपी का सोचा है, या आप थेरेपी में गए हैं, या आप जानते हैं किसी को. Let's play it safe. इन तीनों में या जाके छोड़ चुके हैं. तो थेरेपी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, हमें बताइए, ताकि फिर हम उसको एड्रेस कर सकें. हेलो बिलाल. सो पीपल हु आर विद अस, वाचिंग अस, जस्ट ट्राइंग टू चेक एंड सी के थेरेपी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं. व्हाट डू यू थिंक इज थेरेपी? एंड सो सलीना, फॉर समबडी हु इज नेवर बीन टू थेरेपी, या कभी थेरेपी पे कोई गया नहीं है, हमारी बहुत सारी रेजिस्टेंस होती हैं क्लाइंट्स की थेरेपी में जाने के लिए, और वो काफ़ी हद तक इट्स नॉट इवन अबाउट द मटीरियल रादर देन द कल्चरल टैबू. वुड यू लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट कि ये क्या आपके ख्याल से हमने एक्सपीरियंस किए हैं कि लोग क्यों थेरेपी में इससे क्यों भागते हैं? Lack of knowledge. They don't know what actually therapy is. So मतलब जैसे लास्ट टाइम याद है कि हमने कहा था कि थेरेपी पहले ही देखें क्या नहीं है. So वो some people have this idea that therapy is like giving advices. Yes. Pep talk to perk you up. कोई आपका मूड अच्छा हो जाएगा, या आपके अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो आप एकदम हाई होके निकलेंगे. और ये तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है, मैं तो अपनी फ्रेंड्स को इतनी एडवाइस देती हूँ, मैंने तो सारी जिंदगी काउंसलिंग की है. यू नो, सो जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो इस तरह से आते हैं. फिर स्टिग्मास हैं कि शायद सिर्फ जो लोग मेंटली, एक तो मेंटल इलनेस इज टेकन एज समथिंग शेमफुल, या छुपाने वाली बात है कि मतलब ये तो कुछ जैसे बाकी हमारे बॉडी के इश्यूज होते हैं, एक मशीन है कि कोई तो उन पार्ट्स के कोई फ्लू हो जाए तो कभी कोई इसमें नहीं छुपाएगा कि मुझे फ्लू है. Exactly. समझने की बात ये है कि फ्लू अगर है तो you are not defined by flu because it's a temporary thing ना. आप फ्लू है, अब आपको एक लेबल नहीं लग जाएगा ओ ये तो फ्लू है. किसी को मेंटली अगर किसी का कोई एक फेज लाइफ में आया है जिसमें कि वो थोड़े अरसे के लिए डिसफंक्शनल था या थोड़ा कम फंक्शनल था अपनी लाइफ में, तो वो लग जाएगा उसके साथ एक लेबल के ओ इनके साथ तो कुछ इशू है. बिल्कुल. यस. Whereas कोई और बीमारी होगी तो वो उस वक्त की होगी, इलाज हो गया, सही हो गया, अब ठीक. यानी कि अगर हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तब कोई शर्म नहीं है इसमें कि भाई हाथ टूटा है तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा. या अगर पेट में तकलीफ है तो फौरन माँ परेशान होकर, घर वाले परेशान होकर बोलेंगे कि जाओ दिखाओ, कोई मसला तो नहीं हो जाए, बढ़ जाए. लेकिन अगर दिमाग में कुछ फील हो रहा है जो कि दिख नहीं रहा, इंटेंजिबल है, तो हम उसको कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसी वबा है तुम्हारी, तुम वो कर रहे हो. तो बिलाल ये कह रहे हैं कि ये मिथ है कि थेरेपी इज फॉर, एंड यू कैन रीड दिस, फॉर दोज हु आर साइकोलॉजिकली चैलेंज्ड. इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दैट एनीबडी can go to a therapist just to get an expert's perspective on whatever issue. That's so true, right? So you want to build on that? Yeah. So mental hygiene की भी हम बात कर सकते हैं कि जो जब आपको कुछ भी नहीं है तो आप अपनी टीथ का ख्याल रखते हैं बाय क्लीनिंग देम, और सारे आपका डाइजेशन चल रहा होता है उसकी आप ख्याल रखते हैं, क्या लेना है, फाइबर्स हैं, इनफ चीज़ें हों जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम चलता रहे. लेकिन इमोशनली, मेंटली छोटे से ही
क्योंकि मदर्स खुद नहीं, उनके साथ ये नहीं, ये एक ऐसी चीज है जो आपके साथ की गई होगी तो आप आगे कर सकते हैं। सो वो है ना कि जो चीज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली, या जो समथिंग दैट गोज इन इट विल कम आउट, तो वो एक प्रोसेस है। लेकिन इमोशनली जो चीजें हम ले रहे हैं, या जो मेंटली जो स्ट्रेसेस हैं छोटे से, इवन पैदा होने के टाइम से, तो अगर उस वक्त से मदर को खुद नहीं आते, फिर मदर वो चीज नहीं कर पाएगी, तो वो कहीं स्टक हो जाएगा। तो अगर तो हर एज के लिए डिफरेंट तरह की मेंटल और इमोशनल क्लेंजिंग है, हाइजीन है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। और वो नहीं होता तो इसलिए लेटर एज में जाके कहीं ना कहीं जाके होता है कि जो आपने भी नोटिस किया होगा, आपको थेरेपिस्ट है कि जब कोई आते हैं तो वो कभी ऐसे होता है ना कि समथिंग इज नॉट ओके। कुछ जगह पर नहीं है अपनी, कोई चीज बैठ नहीं रही, कहते ना doesn't sit with us। एंड आई थिंक मुदस्सिर का कमेंट भी सलीना, सेल्फ अवेयर जो है, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है उस हेल्थ, उस हाइजीन के लिए। बिल्कुल। मुदस्सिर का कमेंट इसी का आई थिंक बिल्ड ऑन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट्स बेटर टू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट देन टू रूइन योर लाइफ। और मैं तो जब थेरेपी में गई थी तो मुझे शुरू में तो बहुत ही हाई मिलता है, राइट? एंड आई थिंक शुरू में तो आपको लगता है वाह यार आप, एंड आई ऑलवेज एक्सप्लेन इट टू समबडी एज कि भाई मैं किताब पढ़ने जाती हूँ, समझने इस किताब का नाम है उरूज। यू नो, आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड माई रिमोट कंट्रोल, और उसको समझना कि क्या, यू नो, इट्स लाइक जैसे कल मैं अपने ऑफिस में एक लड़की है मेरी, वो मुझे सिखा रही थी, क्योंकि मैं मैक यूज़र हूँ तो मैं इतने वर्ड के साथ अब काफ़ी दिन से मैं आउट ऑफ टच हो गई हूँ, तो वो मुझे वर्ड पे शॉर्टकट्स वाला सिखाई थी, और मुझे लगा यार ये क्या आहा है, ये कैसे इतने क्विकली हो जाता है ये, यानी कि मैं 4 स्टेप में जो चीज़ करती थी तुमने तो मुझे 1 स्टेप में दिखा दिया। तो I think like when I was going to therapy, and I'm still going to therapy, like, and it's really important to say that, right? You know, therapy is so good. और मैं इस सवाल पे भी सरीना, हम सवाल को लिख लेते हैं कि थेरेपी, थेरेपिस्ट क्या थे, थेरेपी की जरूरत होती है उनको, लेकिन तो मुझे लगता था कि यार मैं तो अपने आप को समझने के लिए जा रही हूँ, और मैं अल्लाह ने जो मुझे बनाया है मैं उसको फुली डिस्कवर करने जा रही हूँ। सो वहीद कह रहे हैं कि थैंक यू, प्राउड टू बी, हाउ टू कंसल्ट यू फॉर काउंसलिंग। अब ये मैंने सवाल इसलिए यहाँ फ्लैश किया है सलीना, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और ये मुझसे काउंसलिंग मांग रहे हैं, तो मैं आप कुछ काउंसलिंग के जो हमारे एथिक्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम काउंसलर के पास जाते हैं तो हम कहते हैं अपनी खाला के पास जाते हैं, कहते हैं आप काउंसलिंग कर दें हमारी। So talk to us a little bit about that so people are aware. So counseling के लिए it's very important that you go to someone that you don't have any other relationship with. Dual relationship नहीं होगा। In fact जब हम contract करते हैं जिस वक्त, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप सेफ फील कर रहे हैं काउंसलिंग में कि नहीं, और उसके लिए बहुत जरूरी होगा कि एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी की आपको एश्योरेंस हो कि दिस थेरेपिस्ट जो व्हाट happens in Corsica exactly, yeah. So whatever I'm gonna say in this room, it's gonna stay in this room. Yes. एक तो ये थेरेपिस्ट के लिए जरूरी है बहुत, और दूसरा ये कि जब वो नहीं जानता होगा तो वो बिल्कुल अनकंडीशनली विदाउट एनी बायसेस, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ ना किसी को। अब जब मैं आपको जानती नहीं तो मैं आपको जज करूंगी। आई एम क्यूरियस। और ये ट्रेनिंग भी है ना आपकी सलना, ये आपकी ट्रेनिंग है कि आप जज नहीं करेंगी, या करेंगी तो अवेयर होंगी कि आप उसको, उसकी इम्प्लीकेशंस उस रिलेशनशिप में नहीं आने देंगी। एग्जैक्टली। तो अगर आप अपने किसी जानने वाले के पास जाएंगे तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकते हैं। सो इसीलिए इवन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ रहा है और वो मुझे कहेगा कि प्लीज मेरी मदर को भी ले लें या मेरी सिस्टर को ले लें, तो वो मैं नहीं ले सकती, वो फिर दूसरे थेरेपिस्ट के पास जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अनलेस कि आप किसी फैमिली थेरेपी में जा रहे हैं, तो वो इंटेंशन ही ये है ना कि सब साथ एक दूसरे की कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ चीजें जो रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो फिर आप उस थेरेपिस्ट के पास साथ जाएंगे, या कपल्स काउंसलिंग में कपल साथ जाएंगे।
लेकिन ऐसे आपके किसी क्लोज रिलेटिव को या क्लोज फ्रेंड को बेटर है कि वो किसी और थेरेपिस्ट के पास जाए, ताकि एक थेरेपिस्ट आपका ही, आप उसका की प्रायोरिटी हो और आप ही का इंटरेस्ट उसके सामने। बिल्कुल। तो सलीना, इसी से क्वेश्चन जो सेगवे निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि तो अगर जो लोग देख रहे हैं और अगर उनके अंदर तलब है थेरेपी की, या उनको जानते हैं किसी को थेरेपी करने के लिए, तो वो कैसे रुजू करें लोगों से, कैसे लाइक वेयर कैन दे फाइंड थेरेपिस्ट, और व्हाट आर लाइक यू नो, हमें क्या, जब हम थेरेपिस्ट के पास जाएं तो हमें कैसे पता ये द वन है? ओके, तो सबसे पहले तो मेक श्योर कि वो लाइसेंस थेरेपिस्ट है। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में तो ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है। सो फिर जो जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि इन्होंने मास्टर्स या पीएचडी ये किया हुआ है, और फिर उनका एक नाम है, किसी इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं। जैसे मैं और आप सीपीपीडी को करते हैं, और हम ब्रिटिश एसोसिएशन से सर्टिफाइड हैं, तो लाइसेंस हमारा है। तो हाँ, मेंबर है। हाँ, वो उनके पास अगर जैसे सीपीपीडी का नंबर आप अपने इधर दे दें कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इधर कांटेक्ट करें, फिर ये आपको एक लिस्ट ऑफ थेरेपिस्ट देंगे। अच्छा, अब आप अपने लिए कैसे चूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी प्रेफरेंस देखेंगे कि आप फीमेल के साथ कंफर्टेबल हैं कि मेल के साथ कंफर्टेबल हैं। फिर आप उसमें चॉइसेस आ जाएंगी, फिर आपके पास कुछ नाम आएंगे, एंड देन आपको थोड़ी सी शॉपिंग करनी होगी। और या फिर जैसे आपका किसी बहुत ट्रस्टेड जिसने कि खुद ट्राई किया हुआ है वो बताएगा कि जी इसके पास जाओ। तो लेकिन फाइनल डिसीजन जब आप एक दफा उस सेशन में चले जाएंगे, आप खुद देखेंगे, इट्स लाइक एनी अदर रिलेशनशिप, whether you click with that person, whether you feel understood, you feel safe। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग भी थेरेपी में इतने टाइम के बाद कभी ये सोचते थे कि ओ मैं ये वाले थेरेपिस्ट को छोड़ूं कैसे, अगर मुझे छोड़ना है तो अगर समझ नहीं आया, मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग ट्रेंड हैं, और मैं इसको बिल्कुल पर्सनली नहीं लूंगी अगर मेरे कोई क्लाइंट बोलेगी कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग एंड आई वांट टू गो टू अनदर थेरेपिस्ट। तो थेरेपिस्ट इस चीज के लिए तैयार होता है उसको इसमें, क्योंकि उसका आपका इंटरेस्ट उसके सामने है और वो ये चाह रहा है कि फिर वो आपको किसी और से कनेक्ट करवा देगा, बिकॉज उसको अगर लग रहा है और आपको भी लग रहा है कि ये आगे नहीं जा रहा, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। सो इसमें शर्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहां आप फुली सेफ एंड कंफर्टेबल फील करें, देन you go ahead with the process. Yeah, so it's kind of like in a relationship में आप देखते हैं, आप भापते हैं, आप ये देखते हैं कि दूसरा आपको आगे से कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर आपका थेरेपिस्ट आपको उल्टा शेम की फीलिंग ना आ जाए आपको, या आपको लगे कि आप किसी उस्ताद के आगे बैठे हुए हैं या किसी ऐसे के सामने बैठे हैं कि आपको तो अपने एक ऐसा रिश्ता जो आपके लिए टॉक्सिक रहा, आपको वो ही याद आ रहा है, तो फिर आप बेझिझक, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वी साइन है। उस पर कहीं ये नहीं लिखा होता कि आपने हमें 6 महीने तक साथ रहना है। हम कहते हैं सिर्फ 2 सेशन दीजिए कि हम जो भी काम हुआ है उसको लपेट शपेट के क्लोज कर दें आपको, ताकि आपके पास अनप्रोसेस पैकेज ना रह जाए। सो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं इस वक्त कोई भी थेरेपी के बारे में। मैं सलीना से जनरल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ क्योंकि हम, सलीना और मैंने ये इंस्टाग्राम पे सेशन किया था, तो क्वेश्चंस हमारे पास इसलिए हैं जो लोगों ने हमसे पूछे थे, बट बिकॉज वी आर ट्राइंग आउट दिस प्लेटफॉर्म सो दैट वी कैन कम इन्फॉर्म्ड, हम प्रॉपर प्रमोशन करके आए ताकि आप अपने सवाल लेके हमारे पास आए। दिस इज अ क्विकर सेशन। सलीना, थेरेपिस्ट की एसेंशियली 2-3 ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जो क्लाइंट को काम में मदद करती हैं? वो जो हमारी 3 जो क्या? ओके, सो मेनली एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी को आप कैसे समझाएंगी? ये है कि आप किसी के पेन में उसके साथ हैं, एज अपोज टू सिंपैथी। सिंपैथी में आप किसी के पेन में उसके कि आई फील बैड फॉर यू, आप उसमें नहीं है, लेकिन आप बाहर से किसी को देख रहे हैं और एक तरह से आपको तरस आया और आपको बुरा फील हुआ कि ये बेचारा कितने तकलीफ में है। और एम्पैथी ये है कि आप उस तकलीफ में सब उसके साथ चले गए और
उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं और उधर से आप फील कर रहे हैं कि ये इसको लाइफ यहाँ से इस एंगल से ऐसी नजर आ रही है और इसको इस ऐसे पेन हो रहा है। तो उसकी नजरिए पे उसकी जगह जाकर महसूस करना कि वो किस चीज से गुजर रहा हम है। लोग इससे ये भी एक सवाल वापस से आ जाएगा जो अभी किसी ने पूछा था कि हमको थेरेपी में इसलिए होते हैं कि हमारा अपना प्रोसेस हुआ होगा, हमने खुद इतने इमोशंस को प्रोसेस किया हुआ होगा, तो हम बेहतर कर सकेंगे दूसरों के साथ। एक मिनट के लिए सेलिना तुम चली गई थी लेकिन वापस आ गई हो। हाँ, you're back. Am I? Yes, you're back. You are back. I can hear you. I can't see you, but I'm pretty sure that you'll be back. Yeah. हाँ. Okay. एक सेकंड. Yes. So you were explaining. हाँ. ठीक. तो इसमें वो चीज आ जाएगी कि आई कैन ओनली टेक माई क्लाइंट टू वेयर आई हैव बीन टू माई सेल्फ। अगर मैं किसी जगह तक खुद नहीं गई हूँ तो मैं किसी और को भी वहां नहीं ले जा सकती। अब अगर आप मैंने एक सपोज एक पेनफुल एक्सपीरियंस को आप ऐसे समझे कि एक घर है और मैंने उस पेनफुल एक्सपीरियंस के सारे कमरे एक्सप्लोर किए हुए हैं, डरी हूँ तो अपनी थेरेपिस्ट के साथ काम किया है और उस डर से निकल के आई हूँ, उस पूरे प्रोसेस से निकल के आई। अब मैं किसी और को वहां लेके जा सकती हूँ क्योंकि मैंने वो जगह खुद देखी हुई, मैं एम्पैथाइज भी बेटर कर सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो एक तो एम्पैथी हो गई और बाकी दो मैं इसलिए रश करी क्योंकि 3 सवालात आए हुए आपके लिए। ओके, दूसरी जो है वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब बगैर किसी कंडीशन के, इसलिए नहीं कि क्योंकि तुम जो है वो मेरे बेटे हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, या तुम मुझे इसलिए अच्छी लग रही हो, या तुम्हारा आप बहुत अच्छी जगह काम करते हैं, तो या ये कि आप मेरी बात मानते हैं और आप ऐसे लग रहे हैं मैं आपके साथ काम एक कोई भी उसका मटेरियल है जो कि हो सकता है कि मेरे उसमें नहीं, मुझे एक्सेप्टेबल ना हो वो चीज, लेकिन मैं उसको एज ए ह्यूमन बीइंग देख सकूं और कि इसमें पोटेंशियल है ग्रोथ का भी और हर उसका, और उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये होगा तो मैं आपके साथ काम करूंगी, ये नहीं होगा तो नहीं करूंगी। तो ये तो क्योंकि हमें दुनिया से अनकंडीशनली लोग जो हमारे पास आते हैं उनको वो ऑलरेडी कंडीशंस का विक्टिम होते हैं। हाँ, क्योंकि तो यानी कि मैं क्या, व्हाट इज द उर्दू वर्ड फॉर इट, अनकंडीशनली? इस वक्त जरूर इस वक्त आई नो इसी वक्त नहीं याद आ रहा, वरना हर वक्त आ जाता है क्या, बगैर किसी शर्त के आप बिल्कुल उस तरह। जैसे और तीसरा, आप हैं मैं आपको वैसे ही बेसिकली मैं आपको आप जो हैं मैं वैसे ही लो, आपको एक्सेप्ट करूँ ऐसे। राइट, ये ना हो कि अगर आप जैसे मदर बच्चे को, अगर मदर नहीं भी कहे लेकिन बच्चे को पता चल जाता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मैं सब पसंद नहीं आ रहा अम्मी को। हाँ, तो मुझे दूसरे को पसंद करवाने के लिए एक सर्टेन चीज करनी पड़ेगी। थेरेपिस्ट कहता है कि तुम जैसे हो वैसे हो, सही हो। दैट्स अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। एंड द थर्ड वन फिर है कॉन्ग्रुएंस, कि आप जेन्युइन कितने, फेक नहीं हो कि अपने अंदर से कुछ और हो रहा है। वो फिर ट्रेनिंग से आता है और अभी तक हम उस पर काम कर रहे होते हैं। इससे बहुत कॉन्ग्रुएंस में भी क्योंकि दो चीजें होती है ना, कि एक चीज है कि आप अंदर से फील क्या कर रहे हैं और आपके बिहेवियर क्या है, और फिर एक आपका पूरा क्या है और वो आप क्लाइंट के साथ क्या कर रहे हो, तो ये टू फोल्ड हो जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट, लेकिन बेसिकली जेन्युइन इज द वर्ड आई थिंक। ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी आर द 3 कंडीशंस। आपको इस लाइक जस्ट टू गिव यू द थेरेपिस्ट इसमें महारत हासिल रखते हैं और वो आपको ये देते हैं। अब मैं सवालात सलीना दे रही हूँ, आप इनके क्विक रिस्पॉन्सेज दे दीजिए। पहला सवाल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड थेरेपी? नॉट एग्जैक्टली, ये यूजुअली इंटरचेंजेबल हम यूज करते हैं। जैसे हमारे इसमें काउंसलिंग और
थेरेपी। हाँ, ये काफी इंटरचेंजेबल। लेकिन अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो तो करियर काउंसलिंग एक अलग चीज है। और हम फिर लोग काउंसलिंग, जनरली, हाँ, और हम लोग जनरली भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर। काउंसलिंग एक सर्टिफाइड पेशा है और आप सीखते हैं काउंसलिंग करना। तो हम भी पहले काउंसलिंग करते थे बगैर सर्टिफिकेशन वाली, हम एक दूसरे को मशवरा दे दिया। लेकिन जब आप काउंसलिंग पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ओ ये तो कुछ और है। दिस इज साइकोथेरेपी। यस, यस, वरना तो साइकोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी पे आ जाएगी और अरोमाथेरेपी, बहुत सारी एग्जैक्टली, थेरेपी। वेरी गुड पॉइंट के मैं भी इसको कैजुअली थेरेपी कहती हूँ, लेकिन ये साइकोथेरेपी है। अच्छा, वहीद कह रहे हैं most of the time people with mental health issues go directly with stress to psychiatrist specialist rather than a psychologist. What do you suggest? When should this decision be taken to go to a psychiatrist rather than a psychologist? Interesting है कि वही अभी भी साइकोथेरेपिस्ट का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि हम जनरली साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। तो क्विकली सलीना, इन तीनों का फर्क मुझे बता दीजिए। ओके, तो जो हम लोग थेरेपिस्ट हैं, समझेंगे आप उनको, मैं एग्जाम्पल में दूंगी, उसको एग्जैक्ट वर्ड्स में ना ले लीजिएगा। तो जैसे आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और उसके बाद फिर वो एक स्पेशलाइज्ड आप देता है कि अच्छा नहीं, आपको आँख के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो आप स्पेशलाइज्ड के पास जाते हैं। और तो फ्रंट लाइन पे मैं कहूंगी कि जो हम काउंसलर्स हैं, हम टॉक थेरेपी से बात कर रहे हैं, तो बहुत हद तक हो सकता है आपका काम यहाँ पे हो जाए। अब अगर मुझे कुछ लगता है कि पर्सनालिटी के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो उसमें टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। वो टेस्टिंग साइकोलॉजिस्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास पूरा होता है कि आपका पर्सनालिटी का और डिफरेंट तरह की बैटरीज रन करेंगे और ये क्वेश्चन है, आपका एक टेस्ट टाइप करेंगे और फिर वो किसी चीज को आप लेबल एक तरह से दे देंगे कि जी ये चीज है या ऐसी चीज नहीं है। और साइकियाट्रिस्ट जब आता है वो डॉक्टर होता है, वो MBBS के बाद साइकियाट्रिस्ट बनते हैं। हाँ। तो वो जो है वो सिर्फ मेडिसिन वाली चीज पर आप, मतलब मेडिसिन की हमेशा जरूरत नहीं होती, या उल्टा ऐसे आया जाता है कि अब सारी दुनिया में टीम्स होती हैं कि साइकियाट्रिस्ट और उसके अंडर साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट होते हैं। सो वो पहले जब एक चीज डेवलप हो गई कि इनके साथ ये ट्रीटमेंट करना है, तो उसके बाद इनको काउंसलिंग की जरूरत है, तो वो रेफर करेंगे कि आपको वो साइकोथेरेपिस्ट के पास भेज दें और आपकी थेरेपी शुरू हो जाए। वेरी गुड। और तो जो मैं इसमें से जो एक पॉइंट पिक करूंगी सबके लिए, वो जरूरी ये है कि दवाई आपको सिर्फ साइकाइट्रिस्ट देता है। तो अगर आपका साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर आपको दवा दे तो ये एक अनएथिकल बात है, और उनकी हमारी ट्रेनिंग में ये नहीं है कि हम दवाई दे सकते हैं। दवाई सिर्फ एक डॉक्टर दे सकता है जिसने MBBS करके आगे पढ़ाई की हुई हो। हम जो है वो टॉक थेरेपी करते हैं। इसका मतलब है कि हम गुफ्तगू से हीलिंग करते हैं, हम रिश्ता जो बनता है उससे हीलिंग करते हैं। और अगर बात यहाँ से नहीं, पहले हमेशा हम गेट कीपर होने चाहिए कि आप पहले हमेशा साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए और देखिए कि अगर वहीं से बात बेहतर हो जाए, दिल का दर्द कम हो जाए, तकलीफ कम हो जाए, जो भी आपको है वो कम हो जाए। अगर वो नहीं है तो खुद आपका साइकोथेरेपिस्ट सजेस्ट करेगा कि मेरा ख्याल से तुम्हें कोई टेस्टिंग की जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट के पास चली जाओ और या चले जाओ। एंड देन वी विल आल्सो सजेस्ट एंड यू कैन आल्सो सी कि भाई मे बी दिस डिप्रेशन इज क्लिनिकल। हमें लग रहा है कि डिप्रेशन जो ये क्लिनिकल है, इन विच केस आपको दवाइयों का देना होगा। तो साइकाइट्रिस्ट और थेरेपिस्ट जो हैं वो साथ साथ काम करते हैं, एक दवाई देता है, एक जबान से करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है शफीक का। अच्छा, वैसे वहीद बता रहे हैं कि अनकंडीशनल इज गैर मशरूत तौर पर। अच्छा, तो आपने शर्त वाली बात सही कहा था। हाँ, एग्जैक्टली, कि शर्त के बगैर। हाँ, तो शफीक कह रहे हैं हाउ वुड वी नो दैट दिस इज द टाइम टू गो टू थेरेपी एंड वुड वी फील द सेम एज लाइक समवन एल्स इज फीलिंग फॉर एम्पैथी। सेकंड नहीं समझ आया मुझे। सेकंड मुझे भी समझ नहीं आया। शफीक, अगर आप इसको जरा खोल के दे दीजिए
अच्छा, इन शफीक ने फिर बताया ये सवाल, ये बेचारे ने तीसरी दफा ये सवाल किया है वैसे। हाउ वुड वी नो एग्जैक्टली व्हेन दिस इज द टाइम टू गो फॉर साइकोथेरेपी एंड हाउ वुड वी एम्पैथाइज इफ वी आवरसेल्व्स नेवर फील। अच्छा, तो एम्पैथाइज, सलीना का मकसद ये था कि थेरेपिस्ट को एम्पैथाइज करना है, आपने नहीं करना, आप फिक्र नहीं करें। ये तीनों चीजें थेरेपिस्ट को करनी थी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप का, यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, you don't have to do anything, you have to do a lot of work but not like this. So how would we know when it's the right time to go for psychotherapy, Selena? तो अगर कोई बहुत ऑब्वियस चीज है तो आपको पता चल ही जाएगा, बिकॉज आप डिस्टर्ब होंगे, आपको खुद आपकी लाइफ की फंक्शनैलिटी जब अफेक्ट करने लगे, यू नो आपका रूटीन है, कब आपसे सुबह नहीं बेड से निकला जा रहा, उठा नहीं जा रहा, या काम में आपके हिंड्रेंस आ रही है, पहले आप जो काम जितने टाइम में कर लेते थे वो नहीं कर रहे, आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ईटिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, या स्लीपिंग वाले, तो जो रूटीन जो है आपका, उसमें आप जितने फंक्शनल थे, तो जब आपकी वो फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है, तो आपको पता है कि अब मुझे कुछ करना है, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों सो नहीं पा रहा, या मैं क्यों खा नहीं पा रहा, या मैं काम उस तरह क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे सुबह उठने का दिल नहीं चाहता, या मुझे किसी और बैठे बैठे घबराहट शुरू हो जाती है, किसी खास इंसान या किसी खास एनवायरनमेंट में सोशल एंजाइटी होती है, जब मैं ज्यादा लोगों के साथ होता हूँ, ये इस तरह के कुछ साइंस होते हैं, कुछ जो बहुत ऑब्वियस हो जाते हैं, फिर लोग आते हैं। कभी ये होता है कि बड़ी डिफरेंट तरह से लोग पहुंचते हैं कि कोई इलनेसेस हो रही हैं और उसकी दवाइयाँ हो गई, डॉक्टर्स ने कह दिया कुछ नहीं है आपको, ये सब साइकोलॉजिकल है, आप सोचती बहुत हैं, आप परेशान होते हैं, तब बहुत अच्छा टाइम है कि अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे लोग अभी भी थेरेपी का इतना ट्रेंड कह लें, या वो फौरन से दिमाग में आता नहीं है किसी के कि ये थेरेपी भी कुछ कर सकती है। वो आपको ये तो कह देंगे कि आपको जो भी है वो स्ट्रेस से है और आप परेशान रहती हैं, परेशान ना हुआ कर, अब आप स्ट्रेस ना लें, आप स्ट्रेस बहुत लेती हैं, मैंने सारी जिंदगी ये सुना है। हाँ, और हाँ, बिल्कुल इमोशनल बहुत है, मैंने तो ये सुना है था कि आप इमोशनल बहुत है, सेंसिटिव। एग्जैक्टली। सो एक तो ये होता है, दूसरा ये तो डॉक्टर ही फिर आपको सजेस्ट करते हैं, और एक होता है कि जब आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं कि आपके वर्क प्लेस पे नहीं बन रही, आप एक पैटर्न देखने लगते हैं कि यार मेरी किसी बॉस से नहीं होती, जब होता है कुछ यही होता है, या आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये होता है कि आप हर दफा सेम तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं और वो रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा, या किसी भी रिलेशनशिप में आ रहा होगा, या आपके इलनेस में आ रहा होगा, या फिर एक बस फीलिंग होगी कुछ लॉस थी कि समथिंग इज नॉट राइट, सो इट्स बेटर दैट टू गो एंड सी कि कोई इस पे काम हो जाए। इससे मुझे याद आया कि अभी मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल उससे पहले एक लाइव सेशन कर रही थी एक ऐसी लड़की के साथ जिसने 3 साल से मेडिटेशन कर रही है, तो और उसका क्या फ़र्क उसकी ज़िंदगी पर आया, तो यंग किड माय कज़न, तो वो ये कहती है कि आई हिट रॉक बॉटम एंड दैट्स व्हेन, सो मेडिटेशन, थेरेपी, ये सब चीज़ें हम या तो तब लेते हैं कि जब हम रॉक बॉटम, लेकिन रॉक बॉटम तब होती है जब हमें आवाज़ पहले जो दस्तक दे रही होती है वो हमें सुनने की कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन जब उसके बाद जब आप इस रो पे निकल पकते हैं तो आपको दस्तक सुनाई देना शुरू जाती है। जो सरीना का दूसरा एग्जाम्पल था वो ये था कि दस्तक को आप सुन रहे हैं कि यार कुछ गड़बड़ है, हर दफ़ा मैं यही करता हूँ, हर दफ़ा मैं ऐसे लोगों में फंस जाता हूँ, हर दफ़ा कोई आके मुझे एक फ़ोन कॉल के बाद मेरा तो दिल बैठा जाता है, तो मैं या मुझसे ना नहीं कहा जाता, वट एवर, देयर कैन बी मैनी मैनी रीजंस। आई एम गोइंग टू टर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सलीना आप थक तो नहीं गई? अच्छा ठीक है। हाउ कैन वी, आपको बिल्कुल रात हो रही है आपके, इसलिए मैं कह रही हूँ, हाउ कैन वी यूज थेरेपी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, विल इट बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउ? Extremely useful. I think now there's a trend of this also. I've seen some colleges that they have started keeping therapists on their panels, अपने स्टाफ में होते हैं, और इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि जो थोड़े ओल्डर लोग हैं उसमें स्टिग्मा ज्यादा है, हमारे यहाँ भी। अब मैं ये देख रही हूँ कि जो एक्चुअली टीनेजर्स हैं, 20s में हैं और इवन अर्ली 30s में हैं,
they're very okay and they're very casual about it, कि उसमें उनको कोई hesitation, झिझक नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छा ये जो जनरेशन Z और मिलेनियल्स का आप बात कर रही हैं, बट मैं एक जरा वैसे मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, कोई मैंने मेरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मैं इस एक सवाल ये जनरली देखा है, because you work with this age group as well, and you have people around you of the same age group. मेरा सवाल ये है, do you think कि ये ज्यादा ट्रेंड ओ लेवल ए लेवल के बच्चों में ज्यादा होता है कि वहां पे ऑलरेडी हो गए हैं, या are you aware? I am not. अच्छा, यूनिवर्सिटीज में भी आना शुरू हो गए हैं। ये हबीब यूनिवर्सिटी, मैं नाम ले रही हूँ इधर के ओ लेवल्स ए लेवल्स के जो मैं यही कहना चाह रही हूँ, इनमें साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट हायर करने शुरू कर दें, इवन स्कूल्स में। पर स्कूल्स में वो एक जरा टेक्निकल थोड़ा शुरू हो जाएगा, लेकिन माइनर्स के साथ करने में थोड़े इश्यूज ज्यादा होते हैं। उसका जो हमें एथिकल फ्रेमवर्क है वो ज्यादा अच्छे से अलग हमारे कल्चर के लिए बनाना पड़ेगा, और क्योंकि हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी वाले या चाइल्ड सिक्योरिटी वाली कोई फैसिलिटीज नहीं है, तो जहाँ अब्यूज है या यहाँ पेरेंट्स कंट्रोलिंग बहुत है, तो जो 30s और 40s वालों को इतने कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल बस अपनी प्रॉपर्टी समझ के तो वहाँ थोड़े टेक्निकल और लॉ के इश्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे अभी वर्क की जरूरत है, लेकिन होना जरूर चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक मैं इस पॉइंट को आई वांट टू सेंड द पॉइंट होम के अभी भी आई थिंक कि अगेन जो ये OA लेवल और हबीब यूनिवर्सिटी टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो फिर भी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन जो हमारी एक जनरल मास्टर्स के जो स्कूल सिस्टम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ नहीं है। वो तो अभी एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो अगर सुन रहे हैं, जो टीचर्स हैं जिनके अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बहुत क्रिटिकल है कि अगर आप, क्योंकि इन बच्चों का दिमाग खुला होता है ज़्यादा इसकी तरफ आना, तो अगर अगेन जितना आप एक धागा उलझ रहा है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो उतना मुश्किल होगा उसको सुलझाना, तो जितना पहले आप ये काम शुरू कर देंगे सो इट कैन बी बेटर। एक और सवाल शफीक का है, वो ये कह रहे हैं कि हाउ डू वी एम्पैथाइज? How do we empathize? No, how to empathize? सवाल पूछ रहे हैं जनरली कि एम्पैथी कैसे बिल्ड कर सकते हैं? एम्पैथी छोटे से ही होती है वैसे बेसिकली, फिर अब आप जब अवेयर हो जाए और आपको लगे कि आप में एम्पैथी है, तो फिर सबसे पहले तो यू नीड टू गेट इन टच विद योर ओन फीलिंग्स। आई थिंक इसका सबसे अच्छा तरीका पहले है तो आप थेरेपी में जाएंगे, तो हमारी तो ट्रेनिंग वहीं से हुई है, इसलिए अपनी थेरेपी से बिफोर वी started studying for as a therapist, it started when the understanding of it started when we were in therapy. अब एम्पैथी एक बड़ा नेचुरल सी चीज भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो अगर डेवलप नहीं की जाए तो वो फिर उसकी आप कहेंगे डिग्रीज होती हैं। अब आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत जुल्म आपको नजर आता है अपने अराउंड, उसकी क्या वजह है? आई थिंक जब आप अपने पेन से इन टच नहीं होते तो आप दूसरे का पेन भी नहीं समझ सकते। सो मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, हो सकता है एक लंबे रास्ते से पहुंच के आके मैंने आपको एक आखिरी मंजिल की बात बता दी हो, लेकिन आई थिंक मुझे यही समझ आए कि रास्ता यही है। अब आप अपने से कैसे इन टच होते हैं, ये एक सवाल है कि आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि रियली मैं भी शफीक सोच रही थी कि आपने बहुत लंबी एक पूछा है। एज अ ट्रेनर आई कैन टेल यू अ क्विक वे, बट जो थेरेपी के अंदर जो जिस एम्पैथी की बात हो रही है, इट्स अ प्रोसेस, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप से शुरू करना है, अपनी प्रैक्टिस से शुरू करना है। आई थिंक दैट्स व्हाट सलीना इज सेइंग एज वेल। तो सलीना, मैंने आपसे कहा था 20 मिनट के लिए आइएगा और मैंने आपको ऑलरेडी 40 मिनट के लिए रोक लिया है, तो मैं ऑलमोस्ट रैप अप करूंगी, बट आई एम गोइंग टू आस्क पीपल के व्हाट इज इट कि आपको हमसे और क्या टॉपिक्स पे बात, अभी तो हमने सिर्फ रैंडम बात की है, लेकिन जब हम आएंगे मटेरियल लेके आएंगे तो बिकॉज ये वीडियो हम रहेगी नीचे, इफ यू कैच इट स्प्रेड इट एंड आस्क
tell us कि what exactly do you want us to talk about, क्या बात आप सुनना चाहते हैं हमसे, कोई सवालात हैं थेरेपी को लेकर, कोई और चीज़ है, आई विल बी नोटिंग इट और फिर मैं इस पे जवाब दे दूंगी वापस। एज सलीना को मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए बोलूंगी, मगर until then if there's any question we'll take it as well. तो सलीना, so people who are watching about therapy, how would you like to end the session? मुझे लगता है थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाए और एटीट्यूड ये हो कि लेट्स सी व्हाट इट इज, लेट्स एक्सपीरियंस इट रादर देन टॉकिंग अबाउट इट, सर्चिंग, दूसरों से पूछना है और डिले करते रहना। अच्छा हाँ अभी just take the leap of faith. Yes, and we have already said it's CPPD. फेसबुक पे भी हैं ये CPPD and you can go to that page. अगर आपको ये लगता है कि खाली थेरेपिस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो हर रेंज का थेरेपिस्ट होता है, बिकॉज क्योंकि 3 साल की हमारी ट्रेनिंग है, 3 साल में हम ट्राइन देख रहे होते हैं, जब हम ट्रेनीज होते हैं तो बहुत ही मुनासिब फीस होती है, कभी कभार तो आपको बिल्कुल ही नेग्लिजिबल फीस भी हो जाती है। तो अगर फीस आपको रोकती है, आई थिंक इसमें ये इम्पोर्टेंट है ऐड करना कि वो जो ट्रेनी होते हैं फिर घबराने की बात इसलिए नहीं थी, वो हाईली सुपरवाइज्ड बहुत, हाँ ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, जैसे हाउस जॉब वाले डॉक्टर होते हैं, आप ये समझ लीजिए, और उनके ऊपर कोई होता है जो उनको बिल्कुल अच्छी तरह देख रहा होता है कि वो कोई गड़बड़ ना करें। एंड ऑफ कोर्स आप हाउस जॉब में आ ही तब सकते हैं जब आपने MBBS पास कर लिया है। तो इस तरह ट्रेनी थेरेपिस्ट भी जो है वो ट्रेनी बनते ही तब है जब उन्होंने वो सारी पढ़ाई कर ली होती है जो उनको ज़रूरी होती है करने के लिए। तो सलीना, थैंक यू सो मच, दिस वाज वंडरफुल, यू केम ऑन शॉर्ट नोटिस। I think you are becoming my pro partner on mental health. And together, inshallah, we'll spread word about it more and more. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.